Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम the most important questions of the poem The Song of the Rain के देखने वाले हैं. तो important questions first number से start करते हैं हम. Who is the speaker in the poem and how does it describe itself? Speaker कौन है poem का? खुद rain itself is the speaker of the poem. It describes itself as a divine blessing. अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करती है रेन? It is a divine blessing. ठीक है. A messenger of mercy, एक messenger है वो of mercy between land यानी कि earth and between the heaven यानी कि sky. And a life giving force that brings joy nourishment to the earth. joy लाती है और nourishment लाती है वो earth में, और वो अपने आप को इस तरीके से define करती है बहुत अच्छे वे में कि rain जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़रूरी है, पूरे के पूरे earth को वो nourish करती है. ओके तो speaker खुद rain है क्योंकि poem personified है. How does the rain bring joy and beauty to nature? किस तरीके से joy and beauty लाती है nature में rain? पोम में हमको क्या बताया है? The rain refreshes the earth, nourishes plants and flowers and makes the field green. It is compared to pearls on leaves and laughter in the fields, symbolizing its beauty and importance in the nature. तो बहुत ही important है rain, beauty और joy लाती है वो by refresh करती है वो earth को, nourish करती है flowers और plants और ट्रीज को, क्योंकि उन सब तक पानी पहुंचाती है वो, एंड इसी तरीके से फ्लावर्स ब्लूम कर पाते हैं, ट्रीज ग्रो कर पाती हैं. What is the significance of the rain being called the sigh of the sea? इसका क्या significance है? Rain is called sigh of the sea because it originates from the sea. मतलब sea ऐसे sigh की आवाज़ आती है sea से, क्यों? क्योंकि वो originate करती है sea से, evaporate हो जाता है ना पानी sea से, तो then it becomes rain, it becomes cloud, then eventually बारिश होती है. It rises as vapor, vapor की तरह वो निकल जाती है sea से, forms clouds and then falls back to nourish the earth, completing a natural cycle. पूरी की पूरी जो natural cycle है वो कंप्लीट करती है, क्योंकि वो सी से बिछड़ जाती है एक पॉइंट पे, सी से हट जाती है, निकल जाती है. दैट इज व्हाई साई ऑफ द सी कहा गया है. How does the rain describe its journey from the sky to the earth? Sky से earth की तरफ जो आती है, descend करती है, तो उस journey को कैसे बताया गया है? Rain describes its descent. पहले तो आप descent ज़रूर लिखेंगे आंसर में, ठीक है? And it is written, it is as a blessing from the heaven. जो उसका descent है, it is written as a blessing. मतलब बहुत बड़ा gift है, एक आशीर्वाद है from heaven, sky से. Softly touching the earth, trees and rivers, it gently taps on windows and brings happiness to all the living things. सब living things को वह happiness लाती है जब rain descend करती है, और वो कहाँ से descend करती है? From the heaven, from the sky. ठीक है? Now, why does the poet use personification in the poem? Personification अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है. It is when कोई एक नॉन लिविंग चीज़ को एक लिविंग चीज़ की तरह ट्रीट किया जाए, ऐसा बोला जाए कि मानो रेन बात कर रही है, ठीक है? तो personification यूज़ किया गया है पोम में, उसके एग्जाम्पल्स हमको देने हैं. तो it is personified. For example, rain says, I am dotted silver threads dropped from heaven. तो I यूज़ हो रहा है. रेन बात नहीं कर सकती है, बट फिर भी I बोल रही है रेन, और पूरा का पूरा सेंटेंस रेन बोल रही है, पूरी की पूरी पोम जो है वो रेन ने बोली है. तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन, है ना? इट इज गिविंग रेन ह्यूमन क्वालिटीज. एंड जैसे कि एक और एग्जांपल है, आई टच जेंटली एट द विंडोज विथ माई सॉफ्ट फिंगर्स. अब ना रेन के पास ना फिंगर्स है ना रेन बात कर सकती है, पर उसको पूरा पर्सोनिफाई किया गया है जैसे कि मानो वो इंसान है. दिस मेक्स द पोम मोर एक्सप्रेसिव एंड इमोशनल. अब क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि देखो, हम इंसान हैं और हम लोग आपस में जो बातें हैं वही समझ पाते हैं. हम अपने आप से जब तक किसी चीज़ को रिलेट नहीं करते तब तक उतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. तो इसलिए रेन को अपने से रिलेट करने के लिए, एक्सप्रेसिव और इमोशनल बनाने के लिए पोम को ये किया गया है. What does the rain symbolize in the poem? क्या symbolize करती है रेन? It symbolizes life, renewal and joy. Life, renewal and joy को represent करती है, और जो nature का cycle है of giving and nurturing, showing how rain connects sky, earth and sea. Sky, earth और sea सबको connect करती है रेन. हमने पढ़ा है evaporation, condensation, precipitation, runoff. evaporation मतलब sky sea से वो उठती है, फिर उसके बाद वो clouds बन जाते हैं, condensation होता है, then cloud से वो आसमान से वो नीचे fall करती है, descend करती है,
to the land and finally eventually it runs off into the sea again. तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है रेन वाटर का, लाइक वाटर का लाइफ साइकिल जो है, वाटर साइकिल हमने पढ़ा है, तो रेन इस तरीके से सबको आपस में कनेक्शन बिठा देती है सबके अंदर, एंड दिस इज व्हाट इज सिंबलाइज्ड, लाइफ, रिन्यूअल, पॉजिटिविटी, जॉय, ये सब रिप्रेजेंट होता है. How does the rain describe itself? Its effect on humans. Humans को कैसे इफेक्ट करती है रेन? It brings happiness, relief, comfort to humans. It describes itself as love, joy and renewal, touching people's hearts and filling them with peace. तो रेन क्या बोलती है कि जो लोग समझ पाते हैं, जो लोग अच्छी तरीके से देखते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है जब रेन होती है. एंड इन जनरल ऑल्सो सारे ह्यूमंस को रेन खुशी प्रोवाइड करती है, एकदम लाइफ एक जो है ह्यूमंस में वो ला देती है. What is the tone of the poem? टोन कैसी है पूरी की पूरी पोम की? जेंटल है, सूदिंग है एंड सेलिब्रेटरी है. The rain speaks in a calm and joyful manner, emphasizing its role as a divine blessing to the world. एक गॉड्स की तरफ से एक गिफ्ट है, एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है रेन, और पूरी की पूरी पोम में बहुत जेंटल टोन में बात करी गई है, एक हैप्पी टोन में बात करी गई है. What is the message? What message does the poet convey through the poem? क्या मैसेज हमको कन्वे होता है कि rain again is a blessing, it is a gift of nature that brings life and beauty to earth. It teaches us about how selfless giving of nature and how everything in the world is interconnected. हमको समझ में आता है कोई भी अकेला अकेला नहीं जी सकता. आप बोलो कि मैं अकेले जीऊँगी और मैं अकेले जीऊँगा और मैं बिल्कुल दूसरे लोगों से बात नहीं करूँगा या कुछ भी, ऐसा सब नहीं चलता. लाइफ का पर्पस है और इंटरकनेक्टेड है सबके सब. एक जो करता है उससे सब पे असर पड़ता है और पूरी दुनिया जो करती है उससे एक इंसान पे असर पड़ता है. इसी तरीके से इसको सिंबलाइज किया गया है इस पोम में भी कि रेन जो है वो सबके बीच का इंटरकनेक्टेडनेस बताती है. सी का, लैंड का, क्लाउड्स का, स्काई का, सबका सब इंटरकनेक्टेड है. पूरा का पूरा जो नेचर है वो इंटरकनेक्टेड है एंड रेन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. How does the poet compare rain to pearls? रेन को मोतियों से, पर्ल से कंपेयर किया गया है, तो कैसे किया गया है? Rain drops to dotted silver threads and pearls on leaves and grass. This comparison highlights beauty, purity and preciousness of nature. तो ये कंपैरिजन से हमको क्या पता चलता है कि नेचर कितना प्रेशियस है. पर्ल्स बहुत प्रेशियस स्टोन्स माने जाते हैं, ज्वेलरी में डालते हैं उनको, ईयररिंग्स और नेकलेसेस में. तो पर्ल्स से रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया है ये बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि रेन जो है वो कितनी प्रेशियस है और कितनी ब्यूटीफुल है. ओके, आई होप सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हैं, समझ आ गए होंगे. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है. सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है तो. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय.